Welcome back to the DKJ Dream Education, an initiative to make your dream achievable. Today I am here with the next topic, that is national income. And before we go further to the topic, I would like to say that please share it to the maximum people so that it reaches to the person who is dreaming for clearing UPSC Civil Services Examination. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट उन पर्सन तक पहुँचे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करने की सोच रहा है. सो लेट्स बिगिन टू द टॉपिक नेशनल इनकम. What is national income? The value of total goods and service produced in a country in a given year is called national income. In simple language we can say. So you can see that value of total goods and services country produced in a year is national income. Now basic concept of some concept of national income we will see in that GDP, GNP, NNP, NNP at factor cost, personal income, disposable income, per capita income, real income, GDP deflator. We'll see it one by one. Let's go to the GDP. What is GDP? GDP is the total market value of final goods and services produced within the country during a year. Means जितना market में जितना भी goods और services produced हुआ within a financial year, उसको हम GDP कहेंगे. इसका एक फार्मूला है C plus I plus G plus X minus M. What is C here? Say C here it is consumption of goods, I is investment goods, and G is the government purchase, imports, M is imports, X is exports. So consumption plus investment plus government purchase, and net export means export minus import. Net export gives you GDP by expenditure method. Let's go to the next point, that is net domestic product, NDP. It is the net output of the economy during the year. That is because NDP is net output, because some of the capitals we can say that it get deteriorated by the time and their value decreases. कुछ जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, आज आज आपने कोई मशीन खरीदा और कल वो चलते चलते डिटोरिएट हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई. या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदा, आज उसका दाम कुछ और था, लेकिन वो आउटडेटेड होने के कारण उसका दाम थोड़ा सा और कम हो गया. मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिव्स नेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, एंड दैट इज जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन मतलब पहले जो प्राइस था उससे कितना कम हुआ, दैट इज डिप्रिसिएशन. जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन गिव्स यू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Now next we will go to the gross national product, GNP. GNP is the total measure of flow of final goods and services in market resulting from the current production in the country during a year, including net income from abroad. यहाँ पे GDP GNP में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे नेट इनकम ऑफ एब्रॉड नेट इनकम ऑफ एब्रॉड को यूज़ किया जा रहा है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो इसका फॉर्मूला है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P. अब C क्या है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स, I इज इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स, G इज गवर्नमेंट परचेज, X माइनस M इज नेट एक्सपोर्ट, एंड R माइनस P इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. जिसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड वो हुआ, मतलब कुछ लोग जो होते हैं जो इंडियन रेसिडेंट है, वो बाहर में काम कर रहे हैं, वहाँ से जो इनकम ला रहे हैं, और हम जो इनकम बाहर वालों को दे रहे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे नेट फैक्टर. उस दोनों को माइनस करके जो बचेगा उसको हम नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे. GNP at market price means gross value of all final goods and services produced annually in country plus net factor income from abroad. समझ में आ गया?
Now we will go to the next. Before we go to the next, we will see that what is factor cost. Factor cost means the factor of production. मीन्स हमें प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लगा उसको हम फैक्टर कॉस्ट करते हैं. लाइक रेंट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, वेज फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फॉर लेबर, प्रॉफिट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप. मीन्स फैक्टर कॉस्ट जो हमें मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये सब ये एडिशन करके जो हमें मिलता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे. मतलब मार्केट प्राइस जो होता है फाइनल, जैसे आप कुरकुरे खरीदते हो तो कुरकुरे में सब कुछ ऐडेड होता है, टैक्स ऐड होता है, सब्सिडीज जो दिया रहता है वो माइनस रहता है. फिर उसके बाद जो टोटल मीन्स मार्केट प्राइस है उससे कम फैक्टर कॉस्ट होता है. मीन्स फैक्टर कॉस्ट मीन्स जो प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट लगा मार्केट में लाने से पहले. और मार्केट प्राइस मीन्स जो मार्केट प्राइस में आपको मिल रहा है, एक्चुअली कंज्यूमर कंज्यूम एट दैट प्राइस. मीन्स आपको टैक्सेस ये सब एडिशन किया जाता है उसमें, तो उसका जो फाइनल गुड्स का प्राइस होगा उसको हम मार्केट प्राइस कहेंगे. मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. Now let's go to the next, that is net national product, NNP at market price. NNP at market price refers to the value of net output of economy during the year. Net output of economy, इसमें क्या करेंगे, NNP फाइंड करने के लिए GNP माइनस डिप्रेसिएशन अलाउंस, जो कैपिटल की वैल्यू कम हो गई है और वो कितना डिप्रेसिएट हो गई है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज NNP. Now NNP at factor cost means NNP at factor cost we calculate by NNP at market price minus indirect taxes plus subsidy. Factor cost बताया था factor of production, तो हम लोग यहाँ पे taxes को माइनस कर देंगे, सब्सिडीज जो है वो ऐड हो जाएगा. Now personal income. What is personal income? Personal income is total income received by the people received by the people is the personal income before the payment of direct taxes. तो ये पर्सनल इनकम हो गया. पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर पेमेंट. Personal income is never equal to the national income because former include the transfer payments whereas they are not included in national income. So next we will see disposable income. Disposable as name suggests, dispose means कितना हम expenditure actual amount कर पाते हैं. Means personal income minus direct tax जितना हमने पे कर दिया, पर्सनल इनकम में से जो इनकम आया हमें उसमें से टैक्स दे दिया जितना एज ए उसको माइनस कर देंगे, तो वो जो अमाउंट बचेगा हमें खर्च करने के लिए और सेव करने के लिए उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे. नेक्स्ट वी गो टू द पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर. मीन्स उसको कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे नेशनल इनकम को, तो हमें पर कैपिटा इनकम आ जाएगा. नेक्स्ट वी विल गो टू द रियल इनकम. रियल इनकम जो होता है हमारा वो होता है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस प्लस P1 by P0, that is price index during the current year by price index during base year. Now what is GDP deflator? GDP deflator is an index of price change of goods and service included in GDP. It is a price index. ये क्या है? प्राइस इंडेक्स जो कैलकुलेट होता है. क्या होता है कैलकुलेट कैसे होता है? नॉमिनल GDP बाय रियल GDP इंटू 100. ठीक है. अब करेंट प्राइस पे होगा तो उसको नॉमिनल GDP कहेंगे, कांस्टेंट प्राइस पे होगा तो उसको रियल GDP कहेंगे. और रियल GDP के लिए हम लोग बेस ईयर लेते हैं जनरली. अभी जो बेस ईयर लिया जा रहा है वो 2011-12 लिया जा रहा है. नाउ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. कितने मेथड है? प्रोडक्ट मेथड है जिसमें हम लोग फाइनल गुड सर्विस जो होता है उसको एक साल में जितना भी ऑब्टेंड हुआ फाइनल प्रोडक्ट
उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमको नेशनल इनकम का पता चलता है. इनकम मेथड और फैक्टर अर्निंग मेथड मीन्स net income earned by the working people in different sector and commercial enterprise is obtained by this method. National income is obtained by adding receipt of total rent, total wage, total interest, total profit. मतलब नेट इनकम जितना भी एक पर्सन द्वारा अर्न किया जाएगा उस सब को ऐड करते हुए हमें नेशनल इनकम मिलता है. एक्सपेंडिचर मेथड, अब कंजम्पशन, इसको कंजम्पशन मेथड भी कहते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड जो है मतलब हमको कितना कंज्यूम और कितना सेविंग के लिए एक इंडिविजुअल के पास रहता है उस सब को ऐड कर देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम का पता चल जाएगा. Next, what are the problems in national income? Problems in national income is that calculating national income is that first black money. Black money हमें इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि उसका हमें पता नहीं रहता है, टैक्स से बचा हुआ रहता है सब कुछ. वो पैसा हमें करप्टेड पीपल जो है ब्लैक मनी के तौर पे मार्केट में बिना गवर्नमेंट से छुपा के यूज़ करते हैं. सो गवर्नमेंट डोंट नो एनीथिंग अबाउट द ब्लैक मनी, सो it is quite difficult to calculate that amount. Then non monetization, बहुत सारे गांव में क्या होता है अभी भी क्या चल रहा है, पैसों की जगह पे कुछ और चीज़ें चलती है. जैसे कुछ सामान हो गया, सामान के बदले सामान, कुछ ये हो गया. तो हाँ, नॉन मोनेटाइज मतलब कुछ ऐसे वस्तु जो पैसों के अलावा यूज किया जा रहा है तो वो हम लोग के जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं हो रहा है. फिर सर्विस सेक्टर ग्रो ज़्यादा कर रहा है. फिर डबल काउंटिंग में क्या है मतलब जीडीपी इसमें क्या होता है जो काउंटिंग करने के लिए हमारा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स नॉट इंटरमीडिएट गुड्स. अब इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है जो कभी कभी ऐसा होता है जो डबल काउंट हो जाता है. मतलब कुछ चीज़ें, अब मशीन बना, मशीन से कुछ सामान बना तो मशीन को अभी अगर हम जोड़ लिए बट मशीन को क्या है वहाँ इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा. बट वी डोंट कैलकुलेट इंटरमीडिएट गुड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. सो इट शुड बी लाइक और जीडीपी, सो इट शुड बी लाइक ऑल फाइनल गुड्स. लेकिन इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता है कहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट एंड हो रहा है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इनकम. नाउ some organization related to the national income account calculation, that is central statistical organization, जिसके अंदर दो है NSO और NSSO, that is national statistical organization, national sample survey office. आप इस PPT में देख सकते हैं पॉज करके. Now let's go to the previous year question. The question asked on the basis of this topic was UPSC in UPSC 2013. That was first question: national income of a country for a given period is equal to the A. Total value of goods service produced by a national, sum of the total consumption, investment, expenditure, sum of personal income of all individual, and मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस. अब इस चार में से क्या होगा आप वीडियो पॉज करके खुद आंसर सोच सकते हैं. अभी हम आंसर बताएंगे. दैट इज डी. द आंसर वुड बी डी. वी कैलकुलेट द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. That is the growth rate of GDP has steadily increased in last 5 years. ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो 5 साल में इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है जो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज, स्लोली जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है लास्ट 5 ईयर में. ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर. ये 2011 का करंट अफेयर बेस्ड है. तो करंट अफेयर बेस्ड है तो इसमें 2011 के तौर पे इसका आंसर 1 होगा. 1 क्योंकि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर. 11 से 5 साल पहले जो इंक्रीमेंट था वो स्टेडी था. अब नेक्स्ट लेकिन इसको अगर इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा जाए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो ये इसमें क्या हो जाएगा आंसर, नाइदर 1 नाइदर 2. हमारा जीडीपी ना ही तो स्टेडली इंक्रीज किया है ना ही पर कैपिटा इनकम स्टेडली इंक्रीज किया है इन लास्ट 5 ईयर.
So you understood the topic of national income. Tomorrow I will be covering with the next topic, that is inflation. Keep watching, keep sharing. Thank you.